ओके, सो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में अ, सबसे पहली चीज आती है कि इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्योंकि कोई भी चीज हम जब स्टार्ट करते हैं तो द फर्स्ट थिंग विच अराइज इनटू आवर माइंड इज हाउ इज द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कोर्स, राइट? So if you do this course, there are at present 500 plus big e-commerce companies in India, right? For example, Flipkart, Amazon, eBay, etc., in which you can apply for the job, right? I know that you have a different purpose, but you can apply in all the companies if you would like to apply. For example, if you will go to the naukri.com and if you will search with the digital marketing and location will be India, and then if you will search, you will find that there are more than 12,000 vacancies today in India. So there is a huge demand of digital marketer right now, because there is a gap between demand and supply, right? Right now there is no university who is giving this course, whether it is Gujarat University, whether it is SP University or any other. Nobody is providing, because in university we have a tendency that we introduce the course whenever it is outdated, રાઈટ? આપણે તો એવો નિયમ છે કે એ જ વસ્તુ છોકરાઓને શીખવાડવાની કે જે માર્કેટમાં આઉટડેટેડ હોય, રાઈટ? એટલે આ જ્યારે આઉટડેટેડ થશે ત્યારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી દેશે, રાઈટ? સો that is the thing. If you will see in the Gujarat, you will find that, as for example, if you will search with SEO jobs in Gujarat or SEO jobs in Ahmedabad, you will find that on the Indeed search engine, you will find that there are more than 400 plus vacancies are there today itself. Here you will find that how many vacancies are there. Jobs 1 to 10 of 480. So more than 400 vacancies are there in this field. So if you know digital marketing today, right now, then you can apply for more than 400 companies in Ahmedabad, right? So that is the demand, right? That is number one. Number two, you can promote your own business and get inquiries in few months, right? If you have already your own thought that you would like to promote this particular business, or you would like to do a job, then you can do the same thing with the help of this as well, right? uh, Also, one more thing is that you can work as a freelancer as well, right? There are so many freelancing websites from which you can get the work and do it at your home, right? If you have the expertise in a particular segment in digital marketing. Okay, so these are the things. We have total 100 plus placement partners in Ahmedabad that you will find on the website. If you will go to the our placement partner page on the website, you will find that we have more than 100 plus placement partners are there, right, in Ahmedabad, right? So uh, यहाँ पे वहाँ रिक्रूटमेंट हो सकता है कि ये लोग सिर्फ कंसल्टिंग ही कर रहे हैं? नहीं, ये लोग, इसमें क्या होता है कि जब भी किसी को जरूरत होती है, ये सारी जो कंपनियां है, इसमें किसी को भी जरूरत है कि भाई वी नीड दी एसईओ पर्सन, सो दे सिंपली कॉल अस एंड आस्क अस दैट वेदर यू हैव अ रेडी trained candidates or not, and we simply give your biodata to them and they just call you directly. We also have created one Facebook page. हमने Facebook पेज भी क्रिएट किया है जहां पर जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो हम वहां पर वो पब्लिश करते हैं. तो आपने वो पेज जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे तो यू हैव टू लाइक दैट पेज, सो दैट व्हेनेवर एनीवन post their job on the Facebook, you can simply notified and you can apply there, right? So these are the way. उसके बाद में है कि कोर्स सुटेबल फॉर, ये कोर्स कौन कर सकता है, राइट? सो ये कोर्स मार्केटिंग प्रोफेशनल्स है, जो उसको ऑलरेडी मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको अभी ये पता चल गया है कि भाई इसका फ्यूचर अभी ज्यादा नहीं है, क्योंकि डे टू डे में बहुत अभी लोग मोबाइल्स का यूज करके सर्विस बहुत लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक साल पहले की बात करो कि एक साल पहले हार्डली फ्यू पीपल बाय
things from the Amazon, Snapdeal, Flipkart, etc. But nowadays you will not find a single person who are not order one item in a month, minimum one item in a month from such website. So this is the difference which has took place in a 1 year. And by 2020, as per the statistics, there will be, right, अभी अराउंड 6% लोग ही गूगल का यूज कर रहे हैं, ओनली 6% इंडिया में। इन इंडिया में, ओनली इन इंडिया। इसीलिए गूगल ने अभी ऐड चालू कर दी है। गूगल, अगर आप टीवी पर देख रहे होते हो तो गूगल ने गूगल मैप के लिए ऐड चालू कर दी है। कई जगह पर आपको होल्डिंग्स भी हाँ, दिखेंगे, होर्डिंग्स लगा है। राइट, कि अगर आपको कंपनी ये की जगह, कंपनी भी ऐड कर रही है। हाँ, तो उनको पता है कि ये जो मार्केट है ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में बहुत ही फास्ट आगे बढ़ने वाला है, बहुत ही फास्ट आगे बढ़ने वाला है। और जिस तरीके से इंटरनेट की दाम कम हुए हैं, राइट, एक साल पहले अगर मुझे 1 GB लेना होता था तो आई हैव टू स्पेंड अराउंड 250। आज 309 में पर डे 1 GB मिल रहा है 4G। जी, ये सो भी बात है। ये भी बहुत ही डिफरेंस आ गया है कि लोगों के लिए इंटरनेट अभी बहुत ही सस्ता हो गया है। तो इसी, और मोबाइल का पेनिट्रेशन भी बहुत बढ़ गया है, सबके पास अभी मोबाइल स्मार्टफोन रहता है। तो अगर कोई भी चीज ढूंढनी है तो सबसे पहले हम गूगल पर ही जाते हैं। सो अगर यही रीजन है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो उसके लिए भी आप यही टेक्निक से या यही मीडियम से मार्केटिंग करके आपकी खुद के लिए लीड या बिजनेस जनरेट कर सकते हो। जो सेल्स प्रोफेशनल है वो भी ये कर सकता है उनका सेल्स बढ़ाने के लिए। जो बिजनेस ओनर्स है वो भी ये कर सकता है टू ग्रो देयर बिजनेस। एंटरप्रेन्योर है जिसको अभी फ्यूचर में अपना खुद का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है वो भी कर सकता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में द इम्पोर्टेंट थिंग इज कैश फ्लो। अगर आपके पास कैश फ्लो है रिकरिंग, सो यू कैन सस्टेन इन द बिजनेस। इन द फर्स्ट ईयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो इन्वेस्ट किए है वो, इट्स ओके कि यू डोंट गेट मच प्रॉफिट, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो कैश फ्लो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, एक इनकम का सोर्स है वो कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि हम सस्टेन कर पाए। तो वो भी ये बहुत काम आएगा आपको। उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, जो ऑलरेडी ये फील्ड में है लेकिन जो अपना नॉलेज शार्प करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी है। और स्टूडेंट्स अगर 12th ग्रेजुएट है या कोई भी तो इसमें लाइन में स्टूडेंट्स है। के एंट्री लेवल क्या होती है? इसको ग्रेजुएट ही रहना चाहिए, 12th का भी आ See, basically, in nutshell, you need three things to grow your career in this field. Number one, your willingness, आपकी सीखने की इच्छा, हाँ, वो तो रहनी चाहिए। वो सबसे पहली चीज है, राइट। क्योंकि कई बार मुझे ऐसी कंस्टेंट आती है कि भाई संडे तो छुट्टी रहती है तो मैं कैसे आ पाऊंगा, तो क्योंकि वहां अंदर से पर विलिंगनेस थी। अंदर में फीलिंग। आज मैं वहाँ से आया हूँ बहुत दूर से, नोएडा से इधर आया। बारिश ये सब चीज़, मुझे तो इंटरेस्ट ही है इसमें। सो विलिंगनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, वो आप में ही होनी चाहिए तब भी आप ये कर सकोगे। नंबर टू इज योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, क्योंकि आपको जो भी समझना है वो इंग्लिश में समझना है, जो भी लिखना है वो इंग्लिश में लिखना है। और जो, अगर आप यहाँ के क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हो, इट्स ओके, यू कैन स्पीक इन गुजराती और हिंदी, बट इफ यू कम्युनिकेट इन द फॉरेन कंट्रीज, योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज नेसेसरी। नंबर थ्री इज योर एनालिटिकल स्किल, क्योंकि इसमें क्या है कि एक सर्वे है कि लास्ट 100 साल में, 100 साल में जितने भी डेटा प्रोड्यूस नहीं हुए हैं ना, उतने लास्ट 3 साल में हुए हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि इंटरनेट की वजह से आप जो भी कुछ करते हो वो सारा कुछ ट्रैक होता है। आप मेरी वेबसाइट पर आते हो तो कितनी टाइम ठहरते हो, कितने, कौन से डिवाइस से आपने मेरी वेबसाइट को लिया, कौन कौन से पेजेस आपने सर्व किए, कौन से पेजेस से मुझको लीड दी, आपने लीड मुझे ईमेल करके दी, फोन करके दी या मेरा फॉर्म भर के दी, ये सारी डिटेल्स मुझे मिलती है। मैं आपको ट्रैक नहीं कर सकता, आई कैन नॉट ट्रैक इंडिविजुअल यूजर, बट आई कैन ट्रैक ईच यूजर्स ऑल दिस डिटेल्स, ताकि मैं मेरी मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है ना वो उसके अकॉर्डिंगली शेप कर सकूं। मुझे ऐसा पता चला कि मुझे ट्यूसडे और सैटरडे को सबसे ज्यादा लीड आती है, ट्यूसडे और सैटरडे को सबसे ज्यादा लीड आती है कंपेयर टू अदर डेज। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन इंक्रीज माय मार्केटिंग बजट अकॉर्डिंगली फॉर ट्यूसडे एंड सैटरडे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डू द सप्लाई मोर। वो चीज आप मार्केटिंग में कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में। अगर, और दूसरे जो मीडियम है, वेदर इट इज प्रिंट मीडिया, वेदर इट इज टेलीविजन मीडिया,
वो सभी में ये बहुत बड़ी चैलेंज है कि वो कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकते। अगर आसोपालव ने आश्रम रोड पर 5 होल्डिंग्स रखे हुए हैं, आसोपालव की एड के लिए 5 होल्डिंग्स, अभी तो बहुत जगह पर उन्होंने किया है। तो अगर आसोपालव को ये ट्रैक करना है या ये मेजर करना है कि फ्रॉम विच होल्डिंग दे आर गेटिंग द हाईएस्ट विजिटर्स टू देयर शॉप, दे कैन नॉट मेजर, क्योंकि ये हर एक कस्टमर को ये पूछ नहीं सकते कि भाई आप कौन से होल्डिंग देखकर यहाँ पर आए हो। दे कैन नॉट आस्क द सेम, बट इफ दे डू द सेम थिंग ऑन द फेसबुक, अगर यही एडवर्टाइजमेंट उन्होंने फेसबुक पर की है फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने लाइक की, कितने लोगों ने उस पर कमेंट की, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने मैसेज बॉक्स में कुछ पूछा। तो ये सारी चीज से उसको अंदाज आ जाता है कि कौन सी एड वर्क कर रही है या कौन सी एड वर्क नहीं कर रही है। तो दैट इज अनदर रीजन कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि मार्केटिंग में यह बहुत बड़ी चैलेंज रहती है कि आपका सिर्फ 50% मनी ही वर्क कर रहा है आपके मार्केटिंग के लिए, 50% वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे मीडियम में यू कैन नॉट मेजर कि कौन सा 50% वर्क कर रहा है और कौन सा 50% नहीं वर्क कर रहा है। डिजिटल यहाँ मार्केटिंग में मेजरमेंट हो सकती है यहाँ पर सब कुछ मेजरमेंट हो सकता है, सब कुछ, सब कुछ। इसीलिए और एक ब्रांच इसके साथ में डेवलप हुई है, इट इज कॉल्ड बिग डेटा एनालिटिक्स। तो बिग वो डेटा समझ नहीं आती, न्यूज़ में सुनता हूँ, पेपर में आता है, Big data analytics is technical field. It is purely technical field. If you know Java, if you know .NET, then you can do that field. Because उसमें अल्गोरिदम रहता है और वो अल्गोरिदम आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाना पड़ता है। तो ये बिग डेटा का मतलब क्या, बहुत सारे डेटा जो है एक जगह इकट्ठा हो गया, ऐसा होता है? बहुत सारे डेटा है, उसको आपको आपके बिजनेस के फायदे के लिए एनालाइज करके बिजनेस को रिपोर्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल ओला कैब है, ओला कैब को ये पता चला कि भाई एट सर्टेन लोकेशन देर इज वेरी लेस और देर इज वेरी फ्यू अवेलेबिलिटी ऑफ द कार। तो वो बिग डेटा एनालिटिक्स वालों को ये डेटा देंगे, जो पास्ट 6 मंथ्स के डेटा है, जिन्होंने जहां पर कार खड़ी हुई है या जहां से किसी ने कॉल करके कार को हायर किया है, ये डेटा ये बिग डेटा एनालिटिक्स वालों को देंगे। वो एनालिसिस करेंगे, वो अल्गोरिदम बनाएंगे कि भाई किस तरीके से कार की अवेलेबिलिटी रखनी है ताकि जब जिस जो भी एरिया में डिमांड ज्यादा है वहां पर कार की सप्लाई भी अकॉर्डिंगली हो। तो ये उनको अल्गोरिदम बना कर देंगे। तो वो अल्गोरिदम के हिसाब से वो कार वाले को बोलेंगे कि भाई ये एरिया में अगर आप रहोगे तो यू कैन वी आर गोइंग टू गिव यू 10% मोर। सो कार वाला ए लोकेशन की बजाय बी लोकेशन पर खड़ा रहेगा और उससे वो कस्टमर को इजीली उसके लोकेशन में वो कार मिल जाएगी। सो दिस इज यस दिस इज द जॉब ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स, राइट। बट बट आप पर वैसे डिजिटल मैं यहाँ कोर्स ज्वाइन करने के इंटरेस्ट रखता हूँ, अभी आने वाले समय में ज्वाइन करूँगा। पर मैं ये चीज़ आपसे भी क्लियर करूँ कि मुझे क्या है ना, तो मैथ्स आती है, मैं कंप्यूटर का एजुकेशन, कंप्यूटर में मुझे बिल्डिंग करना और सर्फिंग करना ये अच्छे से आता है, ये अच्छे से आती, ओके, बाकी कुछ नहीं। आई कैन तो ये अंडरस्टैंड, जो कोर्स मेरे लायक है वही कोर्स मैं कर सकता हूँ, एग्जैक्टली। इसलिए पूछ रहा हूँ। बिग डेटा तो बिग एनालिटिक्स डेटा तो तो मैं मैं कभी चलाता ही नहीं करूँगा ही हूँ, क्योंकि वो मुझे भी नहीं आता है, हाँ, राइट। मुझे सिर्फ डिजिटल यहाँ पे मार्केटिंग करवाता आती है। होगा आपके संस्थान में? नहीं, अभी यहाँ पर तो कोई नहीं करवाता है, अभी यहाँ पर कोई, क्योंकि वो डिफरेंट चीज है, बहुत जी, अलग चीज है। इट इज वेरी डिफरेंट, इट इज नॉट रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। तो आपके लिए मैं ये बता सकता हूँ कि हम इसीलिए पहले 2 लेक्चर फ्री देते हैं, पहले जी, 3 लेक्चर इनफैक्ट, राइट, ये और 2 और, जिससे आप खुद जज कर सको कि ये आप कोर्स कर पाओगे कर कि नहीं कर पाओगे। पाओगे। हमको किसी किसी से भी ऐसे फी नहीं लेनी है कि भाई आप नहीं कर सकते और आपने फी दे दी हाँ, है हाँ, इसलिए आप अटेंड कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उससे नहीं होना उसको भी चाहिए, फ्रस्ट्रेशन है। और एग्जैक्टली। दूसरा क्या है कि कई माता-पिता जो है ज़बरदस्ती भी भेज देते हैं, हाँ हाँ, इसीलिए तो वो बच्चे को भी तो बोरिंग आप हो जाता 3 लेक्चर यहाँ पर अटेंड करो। इफ यू फाइंड एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड यू फाइंड दैट इन ईच लेक्चर यू वैल्यू एडिशन इज देयर इन योरसेल्फ, देन यू कैन गो विद द कोर्स, राइट। सो देयर इज इट इज नॉट मैंडेटरी। उसके बाद में आप ये कोर्स जब कर लोगे तो आप कौन कौन सी चीज कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट को गूगल पे सर्च कर रहा है, तो आप ये कोर्स करने के बाद आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को गूगल पर टॉप में ला सकते हो, राइट। जैसे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो मुझे अगर कोई एसईओ ट्रेनिंग इन अहमदाबाद या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन अहमदाबाद से सर्च कर रहा है,
तो मैंने उस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज किया है कि मेरी वेबसाइट टॉप में दिखेगी, राइट, यहाँ पर भी और प्रोबेबली यहाँ पर भी दिखेगी, राइट। तो ये आप जब ये कोर्स कर लोगे तो यू कैन डू द सेम थिंग एज वेल, कि आपकी प्रोडक्ट या जो सर्विस है, और जब कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ढूंढ रहा है गूगल पर, तो आपको उसको टॉप में लाना है, राइट। दैट इज वन थिंग यू विल बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द कोर्स। और एक चीज है जो आप कर सकते हो, वो है पेड मार्केटिंग। जब आपने ये देखा तो सबसे पहले 4 ऐड थी, राइट। तो आप किस तरीके से गूगल में आपकी ऐड को प्रमोट करना है ताकि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, ये भी बहुत बड़ी चीज है, और ये भी बहुत ही काम की चीज है किसी भी बिजनेस के लिए। किस तरीके से, सपोज मैं ये प्रोजेक्टर ऑनलाइन बेच रहा हूं, सपोज मुझे पता है कि जब मैं 100 प्रोजेक्टर बेचता हूं, सॉरी, जब मुझे एक प्रोजेक्टर पर सपोज 5000 का प्रॉफिट होता है, whenever I sell one projector I get 5000 INR as a profit। और मेरे पास और भी एक डेटा है कि 100 यूजर जब ये प्रोजेक्टर देखते हैं, whether it is on the Amazon और whether it is on the Google, तो नॉर्मली 3 बंदे ये प्रोजेक्टर परचेस करते हैं। आउट ऑफ 100 विजिटर्स नॉर्मली 3 बंदे ये प्रोजेक्टर परचेस करते हैं। यानी जब 100 विजिटर्स ये प्रोजेक्टर 100 विजिटर्स जब ये प्रोजेक्टर देखते हैं, तो मेरा प्रॉफिट ऑन एन एवरेज, आई कैन नॉट से एग्जैक्टली, बट ऑन एन एवरेज आई कैन गेट 15,000 एज अ प्रॉफिट। तो मैं 15,000 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 150। तो मैं एक प्रोजेक्टर की बीड, जब आप ऑनलाइन प्रमोट करते हो तो हर एक कीवर्ड के लिए बीड रहती है। बीड बीड मानी, आप जब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो विच अमाउंट यू आर सपोज टू पे टू द गूगल, और विच अमाउंट ऑफ कमीशन यू आर गोइंग टू पे टू दी अमेजॉन। ये इस तरीके से इसकी प्रोसेस रहती है। तो वो मैं कभी भी 150 से ज्यादा नहीं रखूंगा, क्योंकि 150 से ज्यादा रखूंगा तो द प्रोबेबिलिटी इज हाई दैट माय आरओआई विल बी नेगेटिव। आरओआई माने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरा पास डेटा ये बोल रहा है कि 100 विजिटर्स में से नॉर्मली मुझे 3 बंदे मेरी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, और अगर 3 बंदे करते हैं तो मेरा पर यूजर, पर 100 यूजर्स मेरा प्रॉफिट 15,000 रहता है। तो 15,000 को मुझे एक क्लिक पर लाना है, एक क्लिक में मेरा कितना प्रॉफिट होता है, 150। तो अगर मेरा जितना प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा अगर मैं स्पेंड कर दूंगा तो मैं नुकसान में जाऊंगा। अगर मैं 150 से जितना कम रखूंगा उतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। सो दिस यू कैन एनालाइज बिफोर यू स्टार्ट विद द मार्केटिंग। दूसरे मीडियम में क्या होता है, आप एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपको पता चलता है कि भाई मैं नुकसान में गया या फायदे में गया। ये मार्केटिंग में आप करने से पहले यू कैन डू द योर होमवर्क। सर ये क्यों वहाँ यहाँ गुजरात में भी मैं देखा है कि फिर भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोग इतना आपको सिखा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, लेकिन लोगों को भी अच्छा है। और जो बिजनेसमैन है ना, जहाँ हम जाते हैं उन लोगों को पता नहीं चलता करोड़ के बिजनेस करते हैं ना, एग्री हमेशा पेपर में ही जाते हैं और होर्डिंग में ही जाते हैं। एग्री ये इतनी सॉलिड चीज है, मैं इस पे इतना फेथ रखता हूँ। एग्री एग्री और इसमें क्या टेक्निकल है, नॉलेज नहीं है इसलिए मैं आया आपके पास। एग्री इसमें क्या रहता है कि अभी दूसरे बिजनेस को और जगह से सस्टेन वो हो सके उतना बिजनेस मिल रहा है। जब उसमें गिरावट आ जाने लगेगी देन दे विल फाइंड द अदर सोर्सेस। तो तब जैसे बताएंगे कि अभी जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली वो है, वो बोलते हैं ना कि किसी भी इन्वेंशन की नींव है ना, वो ये है कि उसकी नीड, जब नीड खड़ी होती है ना तब इन्वेंशन अपने आप शुरू हो जाता है। तो अभी इन्वेंशन एक साल अब राह देखो, एक साल में ये सारे बिजनेस वाले उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग इंटरनेट पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस तरीके से सबको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। मैंने एक महीने पहले दिव्य भास्कर में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि कंपेयर टू लास्ट ईयर, ये ईयर 70% लोग कम टीवी देख रहे हैं। 70%। ऐसा नहीं है कि उन्होंने टीवी देखना छोड़ दिया है, दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम टीवी टू यूट्यूब। यूट्यूब एंड मोबाइल। ऑब्वियसली यूट्यूब वो मोबाइल में ओपन करेंगे या अपनी लैपटॉप में ओपन करेंगे। नहीं, व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो यूज करते ही है, लेकिन
लेकिन द पॉइंट इज दैट कि लोग अभी टीवी की बजाय यूट्यूब पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी सीरियल को देखने के लिए। मेरी बच्ची की बात बताऊं तो वो अगर उसका कोई एपिसोड तारक मेहता का छूट जाता है तो वो उसी दिन जब उसको टाइम मिलता है तब यूट्यूब पर देख लेती है मोबाइल से। सो दिस इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो अभी टीवी सीरियल वालों को भी अपनी सारी एड या सारी जो भी एपिसोड्स है वो यहाँ पर वहां पर रखने ही पड़ेंगे क्योंकि उसका ऑडियंस वहां पर है। यानी वो लोग भी अब यूट्यूब में रखते हैं। रख रहे हैं, आपको कुछ भी मिल जाएगा। आपको पास्ट मैच देखनी है कोई भी। अगर एक साल पहले का मुझे सीरियल देखना हो तो मैं अभी स्टार्टिंग का पार्ट नहीं देखा हाँ देख रहा हूँ, हाँ, और पहले का किसी का नहीं तो वो सब भी देख सकते हैं। सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। अपने टाइम पर देख सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? ओके। उसके बाद है आप एनालाइज कर सकते हो आपका परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स। आप गूगल एनालिटिक्स की मदद से, जैसे मैंने अभी बताया कि कितने विजिटर्स ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, कौन से लोकेशन से विजिट किया, कितने लोगों ने आपको लीड दी मानी कांटेक्ट किया, कि कौन से दिन पर आपको ज्यादा लीड मिल रही है, कौन से पेजेस से आपको ज्यादा लीड मिल रही है। जब यूजर आपको लीड देता है तो पास्ट कौन कौन से पेजेस को वो रिव्यू करता है या देखता है, वो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। सपोज मैं अपनी ही वेबसाइट की बात बताऊं तो मेरा लास्ट 3 मंथ्स का डेटा ऐसा बोल रहा है कि जो भी यूजर प्लेसमेंट पार्टनर देखता है ना, उसमें से 10 में से 5 बंदे मुझे लीड देते हैं या 10 में से 5 बंदे मुझे कांटेक्ट करते हैं। ऐसा मैंने 3 महीने का लास्ट डेटा जब मैं एनालिसिस किया था तो मैंने ये देखा। तो व्हाट आर द एक्शन आइटम्स आई हैव टेकन इज, मैंने सभी पेज पर प्लेसमेंट पार्टनर वाला सेक्शन डाल दिया। और बढ़ जाएगा। क्योंकि उसके पहले यूजर को प्लेसमेंट पार्टनर वाले पेज पर जाना पड़ता था वो देखने के लिए, अभी वो ही पेज पर उसको प्लेसमेंट पार्टनर वाला सेक्शन मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली उसका ट्रस्ट फैक्टर ये इंस्टीट्यूट के लिए या लीड देने के लिए बढ़ जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ एनालिटिक्स यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स। सो वो आप, मैंने भी पहले 4 महीने पहले आपको गूगल पे ही फाइंड आउट किया, हाँ हाँ हाँ, वही। तो वहाँ मैंने कॉल किया, नहीं शायद उन्होंने सामने से कॉल किया, देखिए मैंने नहीं किया, आपने आपके किसी लड़के ने कॉल किया। हाँ हाँ, वही रहता है, वही हमारी प्रोसेस ही रहती है उस तरीके की। तो अभी हम, आपको नंबर कैसे फिर मिल गया होगा? नहीं क्या फॉर्म आप, तो नहीं भरा होगा? नहीं आपने भरा भरा ही होगा, वरना नहीं मिल सकता। भरा ही होगा, भरा वरना नहीं मिल सकता। वरना नहीं, वो ऐसी टेक्निक नहीं है कि भरे बगैर आप हमको मिल जाए, वो अभी डेवलप नहीं हुई है, राइट? वन मोर थिंग, अभी हम ऐसी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि जो भी बंदा यहाँ पर कांटेक्ट करता है ना, उसको हम 5 ईमेल भेजेंगे, 5 ईमेल और 5 एसएमएस, उसका ये लाइन में ट्रस्ट बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब कोई बंदा यहाँ पर अप्रोच करता है तो उसको एक क्वेरी रहती है कि भाई इसमें मेरा पर्पस सर्व होगा कि नहीं होगा। तो हम उसको केस स्टडी के माध्यम से, जिन्होंने भी पास्ट में यहाँ से ट्रेनिंग ली है, उसको 2 सेगमेंट रहते हैं, एक तो जॉब वाला सेगमेंट रहता है और दूसरा बिजनेस वाला सेगमेंट रहता है। तो स्टूडेंट जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनकी केस स्टडी हम उसको भेजने वाले हैं, और जॉब के पर्पज से जिन्होंने ली है उनकी केस स्टडी भेजने वाले हैं। 5 ईमेल, 5 या 7, तो उससे हमारा कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि यूजर को कोई भी तकलीफ, जो भी दिमाग में जो भी ये रहेगा कि वो इफ एंड बट जो होगा वो इफ एंड बट निकल जाएगा, और ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड रहेगी। क्योंकि अब जो नेक्स्ट फेज डिजिटल मार्केटिंग में है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी एक एक ही चीज करने के लिए, एक ही चीज बार बार करने के लिए आपको आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, यू मस्ट सॉफ्टवेयर में सेट कर देना है। हम एक ही बार एक बंदे का ईमेल आईडी फोन नंबर डाल देंगे और उसको सेक्शन में डिवाइड कर देंगे कि वेदर द पर्सन पर्पज इज टू ग्रो देयर बिजनेस और टू डू अ जॉब। अगर जॉब करने का पर्पज है तो उसके हिसाब से हम उसको एसएमएस और ईमेल भेजेंगे, अगर बिजनेस करने का पर्पज है तो उसके हिसाब से हम ईमेल और एसएमएस भेजेंगे। तो उसको जो ट्रस्ट है, उसको हमको तो एक ही बार उसका डेटा फीड करना है, उसके बाद वो जो सिस्टम है वो अपने आप क्रॉन जॉब रन करके वो आगे चलाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। अगर आप ईमेल मार्केटिंग का सबसे अच्छा यूज अगर कोई कर रहा है तो अमेजोन कर रहा है। अमेजोन सबसे अच्छा, अगर आप अमेजोन पर जाओगे तो अमेजोन हर एक बार, अभी अभी मुझे 2
दो 10-15 मिनट पहले जब मैं ईमेल देख रहा था तो मुझे अमेजोन का भी ईमेल दिखा, आ गया amazon.in recommend है। जो मैंने पास्ट में जो भी बुक्स देखी हुई थी उसके हिसाब से उसने मुझे ईमेल में रेकमेंड कर दिया। दिस इज दिस इज द ब्यूटी ऑफ ईमेल मार्केटिंग, और दिस इज द वे यू कैन डू योर ईमेल मार्केटिंग फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। आपके क्लाइंट ने कोई सॉफ्टवेयर लिया है और आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर का साइकिल सपोज 6 महीने का या 1 साल का है, तो 1 साल के बाद वो क्लाइंट को या वो कस्टमर को वो सॉफ्टवेयर आइदर अपग्रेड कराना पड़ेगा या वो सॉफ्टवेयर चेंज कराना पड़ेगा। तो अगर आप 1 साल के 11 महीने के बाद अगर इसको प्री डिफाइंड ऐसे 15 ईमेल भेजोगे या 5 या 6 ईमेल भेजोगे जिसमें उसके ही फायदे की बात की है, आपने आपका कोई अपना प्रमोशन नहीं किया लेकिन उसके ही फायदे की बात की है, तो यू विल जनरेट लीड ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको दिमाग में आ जाएगा कि यहां से मैंने लिया था और अभी टाइम हो गया है, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डोर फॉर द फिजिकल मार्केटिंग, you can automate your process smartly and generate leads automatically, right? So this is the beauty of ईमेल मार्केटिंग, और ये अमेजोन सबसे अच्छी तरीके से करता है। आप भी कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप भी कर सकते हो। बहुत सारे ग्राफिक अगर हमें सीखना पड़ेगा तो ग्राफिक किसी वेंडर को बोलना पड़ेगा। नहीं, इसमें मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको करना है। इसमें क्या रहता है, टेक्निकली कुछ सीखना नहीं पड़ जाए, जाके वेब पेज या वेबसाइट बनाने का बात आ जाए तो मैं तो भाग ही जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मेलिंग करना मेरे को इंग्लिश आती है, अच्छे से मेल कर सकता हूँ सब चीज। और हमारे डिजिटल रियली हमारे मार्केट में अभी तकलीफ है, हमारे चीजें हम 4 बार जाके, आपने बोला ना डोर टू डोर जाता हूँ, मुझे पता बेच है, रहा हूँ ऑनलाइन की चीजें, मेरे यहाँ पर और आता डोर है, टू डोर जाना पड़ता है, ये चीजें यूज ही नहीं करते हैं। मैं वही सामने बोल रहा वाला हूँ। भी ट्रेस नहीं करता, हम भी नहीं करते, एग्जैक्टली वही चीज है ना, वही चीज है। परेशान हो जाता है ट्रैवल कर कर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो द पॉइंट इज दैट कि आपने बोला कि टेक्निकल मुझे नहीं आता है, तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर का क्या काम है। जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर नॉर्मली कभी वो कड़िया को क्या बोलते हैं हिंदी में, ये काम कर रहे कड़िया काम जो करता है ना, वो कभी कॉन्ट्रैक्टर करता नहीं है। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है कि प्लान देता है और इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ पर विंडो रखनी है, यहाँ पर एंट्रेंस रखना है, यहाँ पर सीढ़ियां बनानी है, यहाँ पर बीम रखने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरीके से डिजिटल मार्केटर को ये इंस्ट्रक्शन डेवलपर और डिजाइनर को देनी है कि आपको कौन कौन से पेजेस बनाने हैं, आपको बनाते वक्त कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है ताकि वेबसाइट गूगल फ्रेंडली हो या एसईओ फ्रेंडली हो। डिजाइनर को आपको ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपको डिजाइन किस तरीके से बनानी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लीड मिले या ज्यादा से ज्यादा यूजर के दिमाग में आपकी वेबसाइट के लिए ट्रस्ट क्रिएट हो। क्योंकि जब यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है तो नेक्स्ट एक्शन फॉर द वेबसाइट ओनर इज टू गेन द ट्रस्ट कि यू आर अ लेजिटिमेट बिजनेस, राइट, एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन अस टू गिव अस एटलीस्ट लीड टू टेस्ट अवर सर्विस। तो वो चीजें वो आपको डिजाइनर को देनी है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस और आपके एक्सपीरियंस से, और जो आपने दिया है उसके हिसाब से डिजाइनर डिजाइन करके आपको देगा डिजाइन। जो आपने डिजाइन बनाई हुई है उसके तरीके से डेवलपर उसको डेवलप करेगा। तो हमारा काम ये है कि ये सब लोगों को मॉनिटर करना, इंस्ट्रक्शन देना, और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज तैयार हुई है कि नहीं हुई है वो ट्रैक करना, मॉनिटर करना। ये हमारा काम है, हमारा काम बनाना नहीं है, कड़िया का काम हमारा नहीं है, हमारा काम कॉन्ट्रैक्टर का है। क्लियर। उसके बाद है एसएमएस मार्केटिंग। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को एसएमएस किया, एसएमएस में तो दोनों आ जाएगा, बल्क भी आ जाएगा और जो पर्सनली भेजते हैं वो भी इंक्लूडेड है। हाँ ये दोनों सेम ही है, एसएमएस में कुछ है ही नहीं। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है जो 10 या 15 पैसे पर एसएमएस में लेते हैं, प्रमोशनल और ट्रांजेक्शनल दो तरीके के रहते हैं, वो लेते हैं और आप उसको ईमेल। जब उसका क्रक्स ये है, उसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको किस तरीके से एसएमएस ड्राफ्ट करना है ताकि सामने वाला बंदा इंस्पायर होकर आपकी सर्विस ले। जो दिमाग लड़ाना है वो उसमें लड़ाना है, कौन सी सर्विस लेनी है उसमें नहीं लड़ाना है, क्योंकि वो 10th पास बंदा भी कर सकता है। आपका एसएमएस आया तो मैंने रिप्लाई किया,
आई विल कम टुडे ना वाला ना। मैंने हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। स्ट्रक्चर अच्छे से बनाया होता है, एग्जैक्टली एक लाइन पढ़ा तो आगे का लाइन पढ़ना ही पड़ा। एग्जैक्टली। तो वो जो है वो किस तरीके से जनरेट कराना करना है वो हम आपको सिखाएंगे, और हम उसको ट्रैक भी करते हैं कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने गूगल मैप एसएमएस पर, कैसे आप देखते वो देख सकते हैं, वो एसएमएस के टूल के जरिए देख सकते हैं। एसएमएस का टूल है ना, उसके जरिए देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसको ओपन किया, कितने लोगों ने कितने लोगों को रिसीव हुआ, कितने लोगों को डिलीवर्ड नहीं हुआ। ये सारा एसएमएस सॉफ्टवेयर आपको बैकएंड में देता है, ये सारी चीज देता है। वो बहुत, उसमें कोई दिमाग नहीं लड़ाना है, वो बहुत सिंपल चीज है। जो दिमाग लड़ाना है वो मेजरमेंट में लगाना है, और किस तरीके से ईमेल को ड्राफ्ट करना है, एसएमएस को ड्राफ्ट करना है, उसमें लगाना है। मेजरमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये दोनों में ही आपका दिमाग यूज करना है। वरना जो रिमेनिंग चीज है वो तो मशीन को करनी है, तो आपको उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, आपको वहां पर फीड ही करना है। उसके बाद में है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी अभी बूमिंग है, क्योंकि लोग व्हाट्सएप है या फेसबुक है उस पर बहुत ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जो आपका टारगेटेड ऑडियंस है, अगर राइट जगह पर राइट टाइम पर उसको आप एड दिखाओगे, तो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट दे विल कॉन्टेक्ट यू। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने सीजी रोड पर जोहो, जोहो एक सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कंपनी है, वेब एप्लीकेशन डिजाइनिंग कंपनी है, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, आपका काम किस तरीके से मैनेज करना है उसका भी सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं। तो उनकी मैंने ऐड देखी थी सीजी रोड पर, क्रॉस रोड पर। तो मुझे एक आइडिया आया कि अगर ये जोहो वाले अगर फेसबुक या लिंक्डइन, लिंक्डइन इज ऑल्सो प्रोफेशनल नेटवर्क, सो मैनी पीपल आर यूजिंग लिंक्डइन का भी, अगर आपको बिजनेस के लिए, अगर आपकी रिटेल कस्टमर नहीं है आपके, राइट, आपके रिटेल कस्टमर नहीं है लेकिन आपके कस्टमर बिजनेस ओनर्स है या प्रोफेशनल्स है, देन लिंक्डइन इज अ राइट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विस। क्योंकि वहां पर लोग सभी चीजों को सीरियसली लेते हैं, फेसबुक जैसा नहीं है, उसमें सीरियस रहता है। तो वहां पर जाकर भी आप जोहो वाले उसको प्रमोट कर सकते हैं। वो अपना टारगेटेड ऑडियंस उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भी जो भी जिसकी भी डेजिग्नेशन ओनर है, जिसकी भी डेजिग्नेशन सीईओ है, जिसकी भी डेजिग्नेशन एमडी है, वो सारी जो डिसीजन मेकर है, जो ये सॉफ्टवेयर लेना है कि नहीं लेना है, वो डिसीजन मेक करने वाले हैं, उनको ही वो ऐड दिखे। This mechanism or this filtering they can set in the LinkedIn or any other social media platform, और उसके हिसाब से आपकी एड वो बंदों को दिखेगी। और अभी LinkedIn और एक फीचर लाया है, इन मेल मार्केटिंग, यानी आपके LinkedIn के ईमेल में ही वो आ जाएगा कि आपके लिए जोहो किस तरीके से काम कर सकता है। और ईमेल को नॉर्मली सीरियसली लेते हैं लोग, पोस्ट के थ्रेड की बजाय ईमेल को लोग ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो वहां पर भी आप आपकी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया कि आप सब कुछ मेजर कर सकते हो। सपोज आपने 100 लोगों को लिंक्डइन में ईमेल भेजा प्रमोशन करके, 100 में से 3 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट ली, तो 100 को भेजने के लिए सपोज यू हैव स्पेंड 10,000 सपोज, और जो एक बंदे ने लिया है उसमें सपोज आपका एवरेज प्रॉफिट है 8,000, यानी 3 लोगों ने ली तो 24,000 हुआ, यानी 10,000 स्पेंड करके आपने 14,000 प्रॉफिट कमाया, यानी 140% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अभी बैंक भी 6% दे रही है, तो अगर यू आर गेटिंग 140% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यू शुड इंक्रीज योर बजट फॉर द लिंक्डइन मार्केटिंग कंसिडरिंग द पास्ट डेटा, right? So these all things you will be able to do at the end of the course. सर्टिफिकेशंस, सो सर्टिफिकेशंस आपको 3 तरीके के मिलेंगे, गूगल एडवर्ड्स, गूगल एनालिटिक्स एंड हबस्पॉट। जैसे मेरा है, आपको मैं दिखाता हूं, ये मेरा गूगल एडवर्ड्स का सर्टिफिकेट है, ये 2017 तक वैलिड है। हर साल देना पड़ता है, इसकी जानकारी डेढ़ है? साल, डेढ़ साल, एक साल, डेढ़ साल डेढ़ साल तक चलता है। क्योंकि ये ऐसी लाइन नहीं है कि आज आपने कर दिया और पूरे जिंदगी भर यही चलेगा, ये लाइन बहुत चेंजिंग फील्ड है। यू हैव टू बी अपडेटेड एवरी डे। अभी मैं आज भी उठकर हर एक आर्टिकल हर रोज पढ़ता हूँ, ताकि मैं ये जान सकूं कि कौन सी लेटेस्ट टेक्निक आई है, कौन सा लेटेस्ट टूल्स आया है, जिससे मैं अपना काम इजी कर सकता हूं और अपने क्लाइंट को ज्यादा लीड दे सकता हूं। और एक जो है वो है गूगल एनालिटिक्स, ये भी आपको
को मैं दिलवाऊंगा ताकि आप सब कुछ मेजर कर सके। यानी हम भी एग्जाम पास करते हाँ, हम लोग करवाएंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, हैं, ये पढ़ने के बाद आपको हम ही यहाँ से करवाएंगे आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज हबस्पॉट, ये एसईओ के इसका लिए। नाम नहीं सुना, ठीक है? हबस्पॉट, ये अगर आपको एसईओ आता है और इफ यू वुड लाइक टू वैलिडेट योरसेल्फ, आपको आता है, ये प्रूव कैसे करोगे? तो विद द हेल्प ऑफ दिस सर्टिफिकेट यू कैन प्रूव दैट यू नो दिस थिंग, एसईओ। तो वो तो गूगल से भी हो जाएगा, गूगल हम गूगल एडवर्ड्स है, गूगल एडवर्ड्स है, वो पेड प्रमोशन है, ऑर्गेनिक प्रमोशन नहीं है, ये ऑर्गेनिक के लिए ये ऑर्गेनिक के लिए। यानी मुझे ये भी पास करना है। ये भी पास हम लोग करवा देंगे आपको, राइट। और बीइंग वगैरह का इतना जरूरत नहीं है, बीइंग का डिमांड कम है, बीइंग और अभी यहाँ गूगल का बच्चा है, बहुत छोटे, तो देखो जो हाँ आप कोई बात नहीं, सब लोग गूगल में ही पड़े रहते हैं, कौन याहू जिनको 5% भी देखते होंगे। अभी एक सर्वे है कि दुनिया में 80% से ज्यादा लोग सर्च के लिए गूगल का यूज करते हैं और सिर्फ 5 या 6% लोग ही बिंग और याहू का यूज करते हैं, क्योंकि उनके सर्च रिजल्ट की रिलेवेंसी गूगल के हिसाब से बहुत कम है। अगर आप कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, अगर आप एक्सपेरिमेंट करो कि आपको कोई रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाना है और वहां पर आप वो चीज पर अननोन हो, तो आप गूगल पर सर्च करोगे और आपको जो लेवल का डेटा मिलेगा जिससे आप डिसीजन मेक कर सको कि कौन सी रेस्टोरेंट में आपको जाना है, उसके कंपेयर में बिंग बहुत पिछड़ा है। क्या अभी वो बहुत पीछे है? जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी यूएस में आती है ना, तो 5 साल के बाद इंडिया में आती है, वो लेवल की, उसी तरीके से बिंग और गूगल है, याहू देखते हैं। राइट। तो ये है। उसके बाद में आता है कोर्स करिकुलम। तो ये कोर्स में हम कौन कौन सी चीजें आपको सिखाएंगे, इसको डिटेल में हम नीचे देख लेते हैं। सबसे पहले और एक चीज देख लेते हैं। हाँ, हमारी कोर्स मेथोडोलॉजी क्या है? तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हम 3 लेक्चर आपको फ्री में देंगे, ये पहला लेक्चर है आपका। उसी तरीके से और 2 लेक्चर है जिसमें हम आपको पढ़ाने का स्टार्ट कर देंगे, जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से, ताकि आप ये जज कर सको कि ये कोर्स मेरे दिमाग में बैठता है कि नहीं बैठता है और हमारे टीचिंग स्टाइल आपके लिए कन्वीनियंट है कि नहीं। नंबर 2 है क्लासरूम ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली देखो तो आपकी जितनी भी सेंसेस, सेंसेस मानी आंख, नाक, कान, जो भी आप बोलो वो, जितनी भी सेंसेस आपकी कोई भी चीज में ज्यादा है, उतना आप उसमें से ज्यादा गेन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारी 2 वे कन्वर्जेशन है, आप कुछ पूछ रहे हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसका आंसर दे रहा हूँ। ऑनलाइन में 2 वे कन्वर्जेशन नहीं होगी, 1 वे कन्वर्जेशन होगी। आपका पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा और उसके बाद में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो निकल जाएंगे दिमाग से। तो अभी आपने जो क्वेश्चन रेज किया या पूछा और जिसका मैंने अभी आंसर दिया, वो डेफिनेटली आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर मिलने से आपकी ज्यादा सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हुई, तो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट मेमोरी पर होगी। अगर मैं आपको पूछूं कि कॉलेज का कौन सा दिन है जो अभी आपका यादगार है, तो हमारा एक या 2 दिन होगा जब हमने किसी को प्रपोज किया होगा, या हमने किसी की थप्पड़ खाई होगी, या हमारा कुछ अचीवमेंट होगा और एप्रिसिएशन हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी फीलिंग वो चीज से जुड़ी हुई है, तो वो हमारे साथ अटैच है। उसी तरह यहां पर आप बैठोगे तो आपकी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होगी, आपको एक्सपर्ट जो है वो आपके क्वेश्चन का तुरंत ही आंसर देगा, आपका नेटवर्किंग होगा। यहाँ पर जो भी बंदे हैं, अभी तो आप 2 ही हो, लेकिन एक्चुअल बैच में 8 या 10 बंदे होंगे, ये पूरा फुल हो जाएगा। अगर आप मंडे आओगे तो, और संडे संडे को भी, तो ये पूरा फुल होगा। तो आपका नेटवर्किंग होगा, आप दूसरों से भी कुछ सीखेंगे, तो ये सारी चीजें ये ऑनलाइन में पॉसिबल है। इसीलिए हमने क्लासरूम ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैंने अभी 1.5 साल हुए हैं। पहले साल मैं घर पे चला जाता, लेकिन घर पे मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इतनी डिमांड है लोगों की, तो आई शुड बाय द परचेज, आई शुड डू सम इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्ट विद द ट्रेनिंग। तो अभी मेरे 50,000 की तो फिक्स कॉस्ट है यहाँ पर। मेरे 2 एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं, फिर भी मैंने ये किया। और एक कंस्ट्रेंट ये थी कि प्रैक्टिकल फैसिलिटी घर पे नहीं थी,
और अगर आप ये चीज प्रैक्टिकल नहीं करते हो तो तो आपके आप दिमाग में ट्रेनिंग ये तो बैठेगा। 1.5 साल में दी है ना। मैं आप ये लाइन में 10 साल से, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकली खुद वर्क किया होगा कंपनी टेन में ईयर्स 10 10 ईयर्स ये आप देख सकते हो। मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो वहां से मिल चिराग जाएगा। शाह। चिराग शाह, चिराग शाह गूगल एडवर्ड सर्टिफाइड से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो ऐसे एडवर्ड सर्टिफाइड गुजरात में कितने लोग कम है? कितने होंगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन 10% होंगे जितने भी फील्ड में है, उसमें से 10% होंगे। तो 100 तो होंगे। 10%, हाँ 100 तो होंगे, 100 तो होंगे। लेकिन और सब लेकिन लोग ट्रेनिंग नहीं देते, सब अपना लेकिन बिजनेस दो देखते चीज रहती है, जैसे हमने कॉलेज में भी देखा था कि जो प्रोफेसर को अच्छी तरह से आता है उसको ये आप नहीं बोल सकते वो अच्छी तरह पढ़ा भी सकता है। हैं। यस, ये बात मैं मानता हूँ, मैंने देखा है अच्छे जो प्रोफेसर है ना वो खुद स्कोरिंग मार्क्स कम लाते लेकिन पढ़ाने में बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। और जो टॉपर है वो पढ़ा नहीं पाता ये तो मैंने देखा है। तो ये दोनों चीज अलग है। आप हमारे मैंने एमएससी किया था ना, तो हमारे स्कूल ऑफ साइंस में डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक साहेब थे कामत करके, कामत सर, उसमें बहुत ही नॉलेज था। लेकिन वो जब पढ़ाते थे तो क्लास में एक ही लड़की थी उसको पता चलता था, बाकी सब अपने अपना काम करते थे। उसमें नॉलेज उनमें बहुत था। अभी मेरे क्लोज कॉन्टेक्ट है और मैं उनको उनके मुंह पर ही बोलता था कि भाई आप जो पढ़ाते हो ना एक ही बंदे को पता चलता है क्लास में और किसी को पता नहीं चलता है। तो ऐसा है, तो ये दोनों चीज रहती है कि आपको सीखा सीखा नहीं, ऐसी चीज है ना कि आपका इंटरेस्ट नहीं है ना तो आप कभी भी वो नहीं कर सकते। आप सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो ना तो आप कभी भी नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा कि पैसों के लिए अगर आप कर रहे हो ना सिर्फ, तो अगर कोई बंदा आउट ऑफ द सिलेबस का क्वेश्चन करेगा ना तो आप इरिटेट हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको दिमाग में ये है कि मुझे ये टॉपिक बताना है, खत्म करना है और ये खत्म करके चले जाना है जिससे मेरे पैसे छुट जाए। आपका इंटरेस्ट कभी ये रहता ही नहीं कि सामने वाले में वैल्यू एडिशन है। ये जब जब आपकी थॉट प्रोसेस में नहीं रहता है ना, तब तक आप ये ट्रेनिंग दे ही नहीं सकते, इवन दो यू। इसीलिए मैंने देखा कि ट्रेनर बहुत कम है। ट्रेनर बहुत अहमदाबाद कम में है, चार तीन चार लोग ये सर्च में आते हैं। एग्जैक्टली। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि ट्रेनर को खुद को ट्रेनिंग देने में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज दो ही बंदे आए हैं तो मैं वैसे ही ट्रेनिंग आपको डेमो लेक्चर निपटा दूं आधे घंटे में, जो एक्चुअली 1.5 घंटे या 2 घंटे चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको है ना कि दो बंदे जो अपना टाइम स्पेंड करके दूर बारिश में आए हैं तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आया होता तो मैंने कुछ घुमाया है, हम्म, तभी मेरी जो मेहनत है ना वो वसूल है, राइट। और है रीडिंग मटेरियल। तो मैंने मेरे 10 साल के करियर में जो भी कुछ क्रिएट किया है वो मैंने उसकी प्रोसेस बनाई हुई है। क्योंकि कई लोगों को पता होता है कि भाई ये है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना ये बहुत कम लोगों को पता होता है। स्ट्रेटजी बनाकर और प्रोसेस बनाकर कि स्टेप 1 ये होता है, स्टेप 2 ये होता है, स्टेप 3 ये होता है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। और बहुत ही कम लोग इसको इस तरीके से बनाते भी हैं। तो आपको ये ट्रेनिंग से सबसे ज्यादा ये फायदा होगा कि आपको मैं हर एक चीज की प्रोसेस है मेरे पास, कि अगर आपको लोकल लिस्टिंग करना है तो किस तरीके से आपको इसको करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, मेजरमेंट आपको क्या करनी है, उसके स्टेप्स क्या है। ये सारी चीज मैंने 10 साल में जो भी सीखा है वो मैंने, ये स्प्रेडशीट है जैसे हमारी माइक्रोसॉफ्ट में डेस्कटॉप पर स्प्रेडशीट रहती है, ये इस तरीके से गूगल की स्प्रेडशीट है जो आप किसी भी लोकेशन वर्ड से, वर्ड वर्ड वाली वर्ड वर्ड वाली वाली एक्सेल, ये एक्सेल है। तो इसकी ब्यूटी ये है कि आप किसी भी लोकेशन से इसको देख सकते हो। अगर मैं अभी आपके ईमेल आईडी पर इसको एक्सेस दे दूं आपको, तो आप आपके मोबाइल में भी शीट की एप्लीकेशन डालकर इसको देख सकते हो। तो अगर सपोज आप जर्नी कर रहे हो और अगर आपको रिवाइज करना है कि भाई लास्ट लेक्चर में जो किया था वो मुझे पढ़ना है, तो यू कैन इजीली डू विद द हेल्प ऑफ दिस शीट। क्लियर? ये मेरा पूरा मटेरियल है जो मैंने अपनी 10 साल की करियर में क्रिएट किया है, जिसमें मैंने जो भी कुछ किया है वो मैंने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक फॉर्म में, प्रोसेस के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मैं आपको एक्सेस दे दूंगा ताकि आप भी आपकी डोमेन या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इसी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सके, राइट। उसके बाद है कि हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो कोई बात नहीं है, आप आपका खुद का प्रोजेक्ट भी कर सकते हो।
और अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो हम लोग यहाँ से आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट और एक सर्विस वेबसाइट, ई कॉमर्स मानी जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं प्रोडक्ट, जैसे अमेजोन है, स्नैपडील है, वो लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग द सर्विस, दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे प्रमोट करना है वो आप, हम आपको एक प्रोजेक्ट देंगे और दूसरा एक प्रोजेक्ट देंगे सर्विस वाला, यानी यानी जो लोग सर्विस बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, वी आर सेलिंग द सर्विस। तो ये दोनों की एक एक वेबसाइट आप हम आपको दे देंगे। और अगर आपको ज्यादा इंटरेस्टेड है और आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो। ऐसी भी बहुत सारी कंपनी है जो हमको इंटर्नशिप के लिए कांटेक्ट करती है। इंटर्नशिप में क्या होगा कि आपका जो लर्निंग एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकली या रियल वर्ल्ड में वो चीज पर आप काम करोगे, समझे? तो आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। हमारी जो बैचेस रहती है वो अभी ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग एक बैच है वो संडे को सिर्फ देते हैं, दूसरी बैच है वो मंडे टू फ्राइडे को देते हैं। तो आपको जिस हिसाब से कन्वीनियंट है उस हिसाब से वो बैच में आप आ सकते हो, राइट? एक घंटे की क्लास होगा संडे को 4 घंटे का होगा, और मंडे से फ्राइडे 1.5 घंटे का होगा, 10 to 11:30। 10 to 11:30 वो जो बैच है वो आपकी 2.5 से 3 महीने में खत्म हो जाएगी। आप पूरा डिजिटल मार्केटिंग 2.5 से 3 महीने में सीख लोगे। और जो संडे वाली बैच है उसमें 4 to 5 मंथ 5 मंथ लगेंगे, क्योंकि संडे को ही 4 या 5 घंटे आपको बैठना है, तो उसमें जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। और जो रिकरिंग बैच है उसमें ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। इसमें 2 तरीके के कोर्स है, आपने क्या होता है मंडे टू मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे 10 टू एक वीक डे की बैच है और वीकेंड की बैच है, 10 to 12। 10 to 11:30 आपको मैं सिखाऊंगा और 11:30 to 12 आपको प्रैक्टिस करनी है वहां पर बैठकर। जो सिखाया है वही आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप लाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर से नहीं, यहाँ पर ही लैपटॉप लेकर आना है। ताकि इसमें क्या होता है कि मैं यहाँ पर जब एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको सारी चीज बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे कि ये चीज कैसे करनी है, ये चीज तो वो जो क्रुशियल चीजें है ना वो यहाँ पर ही आपको सिखा देंगे। यहाँ मैंने एक बंदे को हायर किया है जिसको मैं 40,000 सैलरी देता, उसका यही काम है कि आपकी जो डिफिकल्टीज है वो रिजॉल्व करके आपको सिखाना। और कोई भी दिन 5 to 6:30 में आप यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन मंडे टू फ्राइडे, बिटवीन मंडे टू फ्राइडे। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। रेगुलर मतलब 5 से 5 वो तो प्रैक्टिकल एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल हाँ, between 5 to 6:30 you can come here and ask for the difficulties you have, and you can call and email as well between 5 to 6:30। अगर आपको कोई कॉल करना है, कोई चीज में आप अटके हुए हो और इफ यू वुड लाइक टू कॉल तो आप 5 to 6:30 में कर सकते हो मंडे टू फ्राइडे, ताकि आप किसी भी जगह पर स्टक हुए हो ना तो वहां के वहां ना रहो, आगे बढ़ो। अगर हमने ऐसी फैसिलिटी दी है तो आप 5 to 6:30 में कॉल करके पूछ सकते हो कि भाई मुझे ये तकलीफ आ रही है तो आगे क्या करूं मैं, या ईमेल भी भेज सकते हो कि भाई दीज आर द एरियाज आई डू नॉट नो हाउ टू प्रोसीड, सो यू कैन डू दैट। यहाँ एक जो फैकल्टी है वो हमेशा ही रहते हैं, आप रहेगा नहीं वो रहेगा ही। वो तो रहेगा 5 to 6:30 में तो वो रहेगा। मैं 4:30 बजे खुल जाता हूँ, तो अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे 5 बजे आ सकता हूँ, 6:30 बजे हाँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर। और है 2 तरीके के कोर्स है, मैंने फोन पर भी शायद आपको एक्सप्लेन किया था। एक 15,000 वाला है जिसमें हम 30 मॉड्यूल सिखाएंगे आपको, 30 मॉड्यूल। वो उस टाइप के लोगों के लिए जिसको सिर्फ ओवरव्यू करना है, इन डेप्थ में नहीं सीखना है। कि भाई सपोज आपका खुद का बिजनेस है
और आप सामने वाले से काम करवा रहे हो, आप खुद नहीं कर रहे हो, सामने वाले से करवा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि वो जो लोग कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए मॉनिटर करना है आपको कि भाई विदर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ये मॉनिटर, इसमें मैं प्रैक्टिकल बहुत ही कम सिखाऊंगा, क्योंकि सामने वाले को वो करना नहीं है, सामने वाले को मॉनिटरिंग करना है, तो वो मॉनिटरिंग कैसे करना है वो सिखाऊंगा इसमें। और दूसरा जो कोर्स है वो 30,000 वाला है, 30, जिसमें 60 प्लस मॉड्यूल्स है, इससे डबल। उसका पर्पज ये है कि जिसको ये लाइन में आगे बढ़ना है, खुद ही काम करना है, प्रैक्टिकली खुद करना है, करवाना नहीं है, उसके लिए 30,000 वाला कोर्स है, जिसमें मैं पूरी चीज आपको इन डेप्थ सिखाऊंगा विद प्रैक्टिकल। वो कितने महीने चलते हैं? वो मैंने जैसे बताया ना, वो 5 महीने चलेगा। अभी जो जो भी बैच चल रही है वो 30,000 वाली चल रही है। अभी जो बैच एक जो मंडे टू फ्राइडे चल रही है वो भी 30,000 वाली है, और संडे वाली है वो भी 30,000 वाली है, जिसमें 5 मंथ्स लगते हैं अगर आप सिर्फ संडे को करते हो, और 2.5 से 3 महीने लगते हैं अगर आप मंडे टू फ्राइडे करते हो। क्लियर? तो अभी नया बैच आपको कब से शुरू होगा? इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना है, एक साथ में नहीं देना है। नया बैच कब से शुरू नए बैच अभी शुरू हुआ है, होगा? एक ही लेक्चर हुआ है उसका, और उसका अभी नेक्स्ट लेक्चर है कल मंडे को एट 10 इन द मॉर्निंग। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कल भी सुबह में आ सकते हो। अभी नहीं, तुरंत। जैसे नया बैच जो शुरू हुआ है वो 1-2 दिन पहले ही शुरू हो गया होगा। हाँ, मैंने वही बोला ना कि 2 ही दिन हुए हैं, 2 ही दिन मानी एक ही लेक्चर हुआ है उसका। तो आप एक लेक्चर तो कभी भी अटेंड करके देख सकते हो, या वीडियो भी देख सकते हो, इट इज नॉट अ बिग थिंग, राइट। लेकिन ऐसा ना हो कि नेक्स्ट बैच अगर 1.5 महीने के बाद शुरू हो तो 1.5 महीने आपका लंबा जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप अटेंड करके देख सकते हो कि भाई दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। आपको 15,000 के 2 इंस्टॉलमेंट देने हैं अगर आप 30,000 वाला कोर्स कर रहे हो। अगर आप 15,000 वाला कर रहे हो तो एक ही बार में आपको 15,000 देना है एडवांस। एडवांस। एडवांस नहीं, 3 लेक्चर के बाद। एडवांस हम कुछ भी नहीं लेते हैं, जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तभी हमको फीस देनी है। 3 लेक्चर अटेंड कर ले, उसके बाद 15,000 ले, तो वो 15,000 का 7,500 करता है। नहीं नहीं, वो तो 2 ही महीने का कोर्स है, हम वो नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, राइट। और पेमेंट कैसे? चेक, कैश या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड? चेक और कैश से आप दे सकते हो। चेक और कैश। चेक और कैश, कैश इज प्रिफर्ड, लेकिन अगर आपके नहीं है तो आप चेक भी दे सकते हो। अभी मैं कौन कौन सी चीजें आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले है डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स। सो डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स है, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स है कि सबसे पहले आपको ये, जब आप किसी का भी मार्केटिंग करो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, हाउ दे आर जनरेटिंग द रेवेन्यू। अगर आप खुद का कर रहे हो तो भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे ही आप स्टार्ट नहीं कर सकते बिजनेस। You have to first do the analysis, you have to create the strategy, you have to review the competitors, and then you can start something new. तो उसी तरीके से हमने प्री डिफाइंड क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जो क्वेश्चंस अगर आपको खुद का बिजनेस करना है तो वो फील करना है, सोचना है, और उसके बाद उसको एनालाइज करके स्ट्रेटजी बनानी है। क्लियर? उसके बाद है आपको डोमेन नेम कैसे चूज करना है। आपका जो भी डोमेन है जिसको आप जिससे आप आपका बिजनेस प्रमोट करना चाहते हो, वो कैसे चूज करना है, क्योंकि वो भी एक टेक्निक है। आपको होस्टिंग प्लान किस तरीके से लेना है, राइट, क्योंकि हर एक होस्टिंग प्लान हर एक के लिए सूटेबल नहीं होता है, वो हम आपको सिखाएंगे बेसिक्स में। गूगल की फिलोसॉफी क्या है, क्योंकि ये लाइन में बहुत लोगों को ये चिंता रहती है कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम आज टॉप में आएंगे और कल चले जाएंगे, क्योंकि गूगल अल्गोरिदम बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। तो हम लोग गूगल की जो कोर थॉट प्रोसेस है, गूगल खुद क्या सोचता है कोई भी चेंजेस करने के बारे में, वो हम आपको बताएंगे, और उसके हिसाब से आपको आपकी वेबसाइट पर सारे चेंजेस करने हैं, ताकि गूगल के कोई भी चेंजेस का आपके ऊपर बुरा असर ना हो, यानी आपका रैंकिंग ना चला जाए, आपका रैंकिंग बढ़े या स्टेबल रहे। क्लियर? उसके बाद है एसईओ, माने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करना है,
कीवर्ड रिसर्च एक लाइन में हम बोले तो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को गूगल पर लोग कौन कौन से वेरिएशन से सर्च कर रहे हैं, इट इज वो जानना, वो है कीवर्ड रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किसी को करना है अहमदाबाद में, तो सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि लोग डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को ढूंढने के लिए गूगल पर कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कई लोग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर से सर्च करते हैं, कई लोग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्च करते हैं, कई लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से सर्च करते हैं, कई लोग एसईओ ट्रेनिंग से सर्च करते हैं, कई लोग एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्च करते हैं। तो वो सबसे ज्यादा कौन सर्च करता है, कौन से वर्ड से? तो जो सबसे ज्यादा करता है या कई बार करता है, उससे तो हमको टॉप में ही रहना है, ताकि हमारा जो ऑडियंस जो भी कीवर्ड से सर्च करता है उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा लीड मिले या ज्यादा से ज्यादा विजिटर हमारी वेबसाइट देखे। तो वो है कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद है पेज ऑन पेज। सो पेज ऑन पेज मानी गूगल 200 200 से ज्यादा पैरामीटर कंसीडर करता है किसी भी वेबसाइट को टॉप में दिखाने के लिए। उसके एल्गोरिदम में 200 प्लस पैरामीटर्स है। मतलब सिखाते भी हैं और ऑर्डर तो लेते हैं, तो जैसे मेरे को क्लाइंट मिले तो आपको मैं बता दूँ। हाँ हाँ हाँ, जैसे डेफिनेटली। आपने बताया सामने का शुरू में और दूसरे टाइम में आप क्या करते हो? सर्विस। वही मैं बोल रहा हूँ। सर्विस तो मैं बोलता हूँ, मुझे काम मिलेगा तो वो भी मैं आपको दूँगा। डेफिनेटली दे। मुझे मिलते ही हैं कि हम लोगों को खुद ही नहीं पता है और आप देख सकते हो। सॉफ्टवेयर बेच में तो वो सॉफ्टवेयर में तो मेरा ट्रेनिंग कंपनी दे देती है। उसके बारे में पूरा बोल देता हूँ। वो जब इसके बारे में पूछ लेते हो, आप बोल सकते हो मेरा, आप आपका कमीशन लेकर बोल सकते हो, हाँ, ऐसा करना है, मुझे लगता है। हम ही आपको हायर कर लेंगे। हाँ, ये मेरा क्या है, वर्क एक्सपीरियंस बहुत है। मैं हम्म। 10 साल नहीं, 16 साल से काम कर रहा हूँ ओह। और 4 साल, चौथा साल है मैं आईटी में आया। उससे पहले प्रिंट मीडिया, और प्रिंट मीडिया में तो मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ कि मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। ये नहीं, इतना नॉलेज है मेरे। जिस जीवन में कैसे पब्लिसिटी ये लोग ये प्रिंट आके सब मैंने 16 साल तक काम किया। मुझे ये में लेक्चर देने के लिए बोला तो उसमें मैं जीरो। अब लोग सोचते हैं कि मैं इसमें भी ओके हो, तो ये दूर दूर भागते होते भी लास्ट में यहाँ आना ही पड़ा। कोई बात नहीं, हम शांति से मिल लेंगे। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, मेरा इतना अगर आप मेरे ला पास सकते हो तो पूरा देख लेंगे। गुजरात का मार्केट है। कोई बात तो नहीं। गुजरात में मैं एक एक बिजनेस ओनर को प्रिंट मीडिया से नाम से जानता कोई हूँ, बात मेरा नहीं। नाम क्या है। हाँ, तो देख लेंगे। अब डिजिटल मीडिया में क्या है, मैं नया नया एंट्री लिया हूँ और उन लोगों को बोल नहीं सकते डिजिटल, मुझे मेरे सॉफ्टवेयर कंपनी देती है, दूसरा कमीशन बोल देता है, वो करता हूँ। सही बात है, सही बात है। कोई बात नहीं, आप अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो हम मिल के बैठ लेंगे, देख लेंगे। और ये कोर्स तो मैं राइट हैंड बिगिनर 2 डेज ज्वाइन करना ही है। हाँ, तो और मैंने ये मैंने तो टाइम कल पास ही जस्ट बोला ना। देखना है कमेंट कैसा हाँ है। हाँ हाँ, देखो देखो, कोई बात नहीं। उसके बाद है पेज ऑन पे। तो गूगल 200 प्लस पैरामीटर कंसीडर करता है किसी भी वेबसाइट को टॉप में दिखाने के लिए। तो वो 200 पैरामीटर्स में से बहुत सारे पैरामीटर आपकी वेबसाइट कैसी है, मानी आपकी वेबसाइट पर आपने टाइटल पर क्या रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपकी हेडिंग में क्या है, कंटेंट में क्या है, ये सारी चीज गूगल देखता है। और उसके बाद में उसके हिसाब से आपको रैंक देता है, आपकी क्रेडिट के हिसाब से। तो आपको वो आपकी वेबसाइट के लिए लेक्चर